श्रीलंका में बहरान के दरमियान सियासी खलासा है। मफरूर सदर गोटाबाया का इस्तीफानामा अभी आम नहीं हुआ है, जो इस्तिराबी का सबब है। एहतजाजी सरकारी तनसीबात पर जमे हैं, गोटाबाया के इस्तीफे के मुंतजिर हैं। एहतजाजी कल की तरह बरहमी का इजहार कर रहे हैं। मुहासरा तो नहीं कर रहे, लेकिन सूरत हाल सीमाबी जरूर है। इसीलिए श्रीलंका में दोपहर 12 बजे से कर्फ्यू का निफाज है, ताकि कोई नाखुशगवार वाकया न पेश आए। श्रीलंका से फरार होने वाले सदर गोटाबाया मालदीव से रवाना हो गए हैं। सऊदी अरब होगा अगला ठिकाना। Gotabaya Rajapaksa has been trying different options to in fact leave Maldives and go to other destinations. Some of the options were Singapore and Dubai, but Dubai did not work. Even Singapore, he was all set to go along with his wife late last night at around 11:55 p.m. But that didn't take off because there were a lot of protests that were and protesters also gathered outside the airport, and he did not want to take the risk because of the ire of the people. He decided not to take that commercial flight. Therefore, late last night he was not able to go. And even today there were different options that were doing the rounds by the local media. One, of course, was the fact that there's a private jet that has been arranged for President to leave Maldives. What we are given to understand is that finally Gotabaya Rajapaksa and his wife, along with 2 security personnel, have boarded the Saudi airlines and are on the way to Singapore. So in the next 5.5-6 hours they will be reaching Singapore. But the question remains if he will submit his resignation once he lands in Singapore, because he wants to ensure that he is still very much in power till he reaches a safe destination. So all eyes on whether after landing and whether the speaker will formally announce that Gotabaya has resigned. That remains to be seen, because protesters have been waiting patiently since yesterday for that formal announcement. And here, if I can show you, this is the way that leads to the parliament. Late last night, dramatic scenes unfolded here, and protesters tried to storm the parliament, but you can see barricades here in place. What we are given to understand is that because of the volatile situation, a lot of army personnel have been deployed here. If you can see, there are at least 200 to 300 personnel deployed. Apart from this, there are also police officers who've been deployed. Late last night, what happened here was when protesters, at least 500 to 700 protesters, tried to cross. They pushed these barricades and they tried to go further down, but they were stopped. There were multiple rounds of tear gas and water cannons used to disperse the crowd. So once again, late last night, dramatic scenes here en route to the parliament. But right now, heavy security presence, both army officers as well as police officers have been deployed. Protesters, however, have maintained that they are going to vacate all the government places that they have occupied, and that they will ensure that they will listen to what the speaker had suggested and will vacate all the government premises and continue to protest peacefully at the Galle Face, where they've been protesting for the last 97 days. एक और अहम खबर, बौद्ध मजहब के रूहानी रहनुमा दलाई लामा जम्मू पहुंचे। वो कल 1 माह के लंबे दौरे पर लद्दाख रवाना होंगे। जम्मू में उनकी आमद पर लोगों की बड़ी तादाद और ख़ास तौर पर तलबा अपने रूहानी रहनुमा के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर खड़े नजर आए। मूसलाधार बारिश के बावजूद दलाई लामा का जम्मू में ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए दलाई लामा ने तिब्बत के मामले पर चीन को निशाना बनाया और कहा कि चीन में सिर्फ कुछ सख्तगीर लोग उन्हें अलहदगी पसंद करार देते हैं, जबकि चीन में एतदाल पसंद लोगों की अक्सरियत अब ये समझती है कि वो तिब्बत की खुद मुख्तारी की वकालत करते हैं, जिसका मकसद तिब्बत में बौद्ध सकाफत की हिफाजत करना है। दलाई लामा ने मजीद कहा कि चीन उसूलों पर अमल नहीं कर रहा और तयशुदा उसूलों पर अमल पैरा होने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमन और भाईचारा वक्त की अहम ज़रूरत है और वो इस पैगाम को हर जगह आम करने की कोशिश कर रहे हैं, फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दलाई लामा ने यह भी कहा कि वो लद्दाख का दौरा कर रहे हैं। That's the usual.
the Chinese, not Chinese people. Some Chinese hardliner, they consider me splittist and reactionary. So always criticize me. But now more and more Chinese now realize Dalai Lama not seeking independence, but within China, within People's Republic of China, meaningful autonomy and Tibetan Buddhist culture preserved. Now this respect, now more and more Chinese now really showing interest about Tibetan Buddhism. नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको दे दें। काजीगुंड में यात्रियों की बस हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में 20 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर जम्मू कश्मीर से, काजीगुंड में यात्रियों की एक बस हादसे का शिकार हो गई है और अभी तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक हादसे में 20 यात्री जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर से, काजीगुंड में यात्रियों की एक बस हादसे का शिकार हो गई है। अभी तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक इस हादसे में 20 यात्री जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 उर्दू पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं। काजीगुंड में यात्रियों की जो बस हादसे का शिकार हुई थी उसमें जख्मी यात्रियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तो बेहद अहम खबर, काजीगुंड में अमरनाथ यात्रियों की बस हादसे का शिकार हो गई। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी ज़हूर रिजवी का। ज़हूर, इस हादसे के ताल्लुक से आपसे जानना चाहेंगे तफसीलात। ये अभी कुछ देर पहले का वाकया है। यहाँ बदरागुंड काजीगुंड के मकाम पे, जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा है, नेशनल हाईवे, यहाँ पे एक हादसा हुआ। एक डंपर और एक एसआरटीसी बस जिसमें यात्री सवार थे, उन दोनों गाड़ियों के दरमियान जो टक्कर हुई और इस टक्कर के दौरान जो है तकरीबन 20 अमरनाथ यात्री जो हैं वो जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 2 को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग जो है मजीद इलाज मुआवजे के लिए जो है दाखिल किया गया है। जबकि बाकी दीगर जितने भी यात्री हैं उनको फर्स्ट एड जो है, क्योंकि उनकी माइनर इंजरीज थी, फर्स्ट एड देकर उन्हें जो है वहां से रवाना किए। जो अभी अभी हमें पास तफसीलात आई हैं, हिना मैं आपको बताऊं कि एक वेदांत तिवारी है सन ऑफ राजकुमार, रेजिडेंट ऑफ जबलपुर मध्य प्रदेश, और दूसरे हैं आनंद हरनत गोगर। तो ये 1-2 लोग जो हैं इन्हें शिफ्ट किया गया है यहाँ जीएमसी अनंतनाग में। और इसके साथ साथ जो काजीगुंड का जो इमरजेंसी हॉस्टल है वहाँ पे मजीद 6 यात्रियों को फर्स्ट एड देके उनकी माइनर इंजरीज थी, उनको वहाँ से जो है छुट्टी दे दी गई है। कुल मिलाकर ये अभी जो हादसा हुआ है काफी खौफनाक हादसा था। अगर आप हमारे नाज़रीन तस्वीर में देख रहे होंगे, मनाज़िर देख रहे होंगे, तो काफी खौफनाक हादसा था जिसमें जो है तकरीबन 20 यात्री जो हैं अभी जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने मामला जो है वो दर्ज कर लिया है और अभी तहकीकात शुरू हो रही है। और बिल्कुल अभी यात्रा जो है वो रवा दवा है और बिल्कुल जो है यात्री जो है अपने सही मकामात और महफूज मकामात की तरफ अपनी जगहों की जानिब जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। जी है ना। जी ज़हूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम तमाम तर मालूमात के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी कुलगाम से ज़हूर रिजवी, जो कि बता रहे थे कि काजीगुंड में जो यात्रियों की बस हादसे का शिकार हुई थी, इस हादसे में 20 यात्री जख्मी हुए थे। जख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल किया गया। 2 यात्री जो ज़हूर जो इस तरह से बता रहे थे, 2 यात्रियों को अनंतनाग ले जाया गया है। उन्होंने उनके नाम भी बताए हैं। साथ ही साथ ये भी ज़हूर ने बताया कि बाकी जो यात्री हैं उनका भी इलाज मुआवजा किया जा रहा है।
यूपी के हाथरस कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेजा। जुबैर के खिलाफ दफा 153A के तहत हाथरस में मामला दर्ज किया गया था। मोहम्मद जुबैर पर मजहब और नस्ल की बुनियाद पर नफरत फैलाने का इल्जाम है। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी के 6 मुकामात पर मामले दर्ज किए गए। सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस में मोहम्मद जुबैर पर ये केस दर्ज किए गए। इन मामलों की जांच के लिए यूपी हुकूमत ने SIT तश्कील दी है। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के तबसरे पर तनकीद के मामले में नाक़दीन के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा चलाने से इत्तेफाक करने से इनकार कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह मुनसिफाना और माकूल तनकीद के दायरे कार में आता है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस SN ढींगरा, साबिक ASG अमन लेखी और सीनियर एडवोकेट के राम कुमार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने से इनकार किया। अरकान पार्लिमान होशियार, अपनी ज़बान को काबू में रखें। कहीं ऐसे अल्फाज पार्लियामेंट में खिताब के दौरान ज़बान पर ना आए जिनका इस्तेमाल गैर मुहज़्ज़ब तसव्वुर करार दिया गया हो। दरअसल लोकसभा सेक्रेटेरिएट की जानिब से ममनुआ अल्फाज पर मबनी नया किताबचा जारी किया गया, जिसके मुताबिक इन अल्फाज के दानिस्ता या गैर दानिस्ता इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। किताबचे के मुताबिक अरकान पार्लिमान अब तानाशाह, तानाशाही, जयचंद, खालिस्तानी, नौटंकी, निकम्मा, ढिंढोरा पीटना, ड्रामा, बहरी सरकार, जुमला जीवी समेत ऐसे कई अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल अब ममनू होगा। ममनुआ अल्फाज की इस फहरिस्त पर अपोजिशन ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि मोदी हुकूमत के सच को उजागर करने के लिए अपोजिशन के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले इन तमाम को अब गैर मुहज़्ज़ब करार दिया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के लीडर महुआ मोइत्रा ने भी फहरिस्त पर तनकीद की। उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी मुल्क को कैसे तबाह कर रही है, ये बताने के लिए अपोजिशन के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। वहीं प्रियंका गांधी ने भी अल्फाज के नए किताबचे पर ट्वीट किया। अपने ट्वीट में प्रियंका गांधी ने लिखा कि सरकार की मंशा है कि जब वो बदउनवानी करे तो उसे बदउनवान नहीं, बदउनवानी को मास्टर स्ट्रोक बोला जाए। 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आमदनी दुगनी करने जैसे जुमले फेंके तो उसे जुमला जीवी नहीं, थैंक यू बोला जाए। पार्लियामेंट में देश के अन्नदाताओं के लिए आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? और कांग्रेस लीडर शक्ति सिंह गोयल का कहना है कि जमहूरियत में सिर्फ हुकूमत की मंशा से काम नहीं चलता। हुकूमत ने इन अल्फाज के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है जो अरबाब इख्तिदार को चुभते हैं। शक्ति सिंह गोयल ने कहा कि इस मामले में स्पीकर से बात की जाएगी। बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोयल। सर, मानसून सत्र से पहले लोकसभा सचिवालय ने एक सूची तैयार की है कि उन शब्दों के इस्तेमाल की मनाही होगी, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हमारी एक परंपराएं हैं। अगर इस तरह का कोई कानून में बदलाव या ऐसी चीज़ें करनी होती है तो ऑल अपोजिशन पार्टी और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं के साथ फॉर्मल या इनफॉर्मल डिस्कशन होता है कि भाई ये हम करने जा रहे हैं। क्योंकि पार्लियामेंट में सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी। लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि स्पीकर और चेयरमैन लोकसभा के वो दल से ऊपर होते हैं और उसको सबको साथ में लेके ही करना होता है। सरकार की मंशा से काम नहीं होता है। इस सरकार ने वो लफ्ज़ जो सीधा भाजपा के नेताओं को, इस सरकार के मंत्रियों को, प्रधानमंत्री जी को सच सीधा चिपक रहा था, उसको अनपार्लियामेंट्री कर दो। कहाँ का ये न्याय है? देखिए, आंदोलन करना वो संवैधानिक अधिकार है सबका और वो करना चाहिए। तो ये इसकी भी मजाक करते थे आके कि आंदोलन जीवी। जुमला देना लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा वाले हम चुनाव के वक्त कहते हैं, वो करना थोड़ी ही होते, वो तो जुमले होते हैं। तो हम कहने लगे कि भाई जुमले जीवी हो, तो बोले वो अनपार्लियामेंट्री हो गया। मास्क कोई नहीं पहनता था तो आपको 500 रुपीज़ 1000 रुपीज़ पेनल्टी होती थी कि आप कोरोना स्प्रेडर हो, आप कोरोना फैला रहे हो। देश के नागरिकों ने पेनल्टी दी, पैसे भरे दंड के। और उसी वक्त पे प्रधानमंत्री जी के आसपास सब मास्क लगाते थे, कानून था। प्रधानमंत्री जी मास्क नहीं पहनते थे। तो हम ज़रूर कहते कि आप कोरोना स्प्रेडर हो, बोले नहीं, अब आप ये नहीं कर सकते हो। भ्रष्ट को भ्रष्ट नहीं कह सकते हो, करप्ट को करप्ट नहीं कह सकते हो। ये कहाँ का न्याय है?
तो ये सारी चीज़ों के खिलाफ हम लड़ेंगे। स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर और ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा दोनों को हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इसको लागू ना करो, और हमारे पास और भी रास्ते हैं। और आखिर तो हमें पार्लियामेंट में ये करते हैं, पर देश की जनता जो है उसे कैसे रोकेंगे। कल देश की जनता ने एक वायरल किया, विश्व ठग गुरु, और विश्व ठग गुरु वायरल हुआ, तो देश की जनता को सच है वो आप रोक नहीं सकते हो। सर, भागीदारी को लेकर भी गुजरात में जो चीजें हुई, और दूसरा क्या सर, क्या नई शब्दावली अब आएगी? देखिए, गुजरात में भी जब वाइब्रेंट गुजरात के नाम पे बहुत भ्रष्टाचार हुआ, हम विपक्ष में थे, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स देके कहा कि ये साफ दिखता है कि आपकी पार्टनरशिप, आपकी भागीदारी है, कि देर नहीं, भागीदारी अब अनपार्लियामेंट्री हो गया। कहीं पार्टनरशिप या भागीदारी और अनपार्लियामेंट्री हो सकता है, वो कर दिया इन्होंने। तो उसी तरह से लोकतंत्र का गला घोंटने का काम जो वहाँ हुआ था वो अब दिल्ली में हो रहा है, पर देश की जनता देख रही है, इसे माफ नहीं करेगी। बस आखिरी सवाल है सर, जयराम रमेश जी ने भी कहा विश्व गुरु को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग वो लफ्ज़, क्योंकि कल बहुत वायरल हुआ था, गुरु पूर्णिमा थी, विश्व ठग गुरु, तो जयराम जी ने अपनी एक डिसेंसी मनाते हुए विश्व ठग गुरु कल वायरल हुआ था, उन्होंने विश्व गुरु कहा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबर बिहार से है, जहां पटना से मुत्तसिल फुलवारी शरीफ में केरला, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु समेत कई रियासतों से ताल्लुक रखने वाले सिमी के पुराने मेंबरों को मुल्क दुश्मन सरगर्मियों को अंजाम देने की तरबियत दिए जाने के इंकिशाफ के बाद खलबली मच गई। पटना पुलिस के अलावा एटीएस स्पेशल ब्रांच और दीगर एजेंसियां इस पूरे मामले पर मुसलसल कार्रवाई कर रही हैं। इस मामले में फुलवारी शरीफ के नयाटोला में अमर पैलेस के मालिक मकान मोहम्मद जलालुद्दीन और सिमी से वाबस्ता मोहम्मद अतहर को गिरफ्तार करने के बाद आज एजेंसियों ने पटना पुलिस की मदद से मजीद 3 लोगों को हिरासत में लिया। इस वक्त हम फुलवारी शरीफ के नया टोला स्थित अहमद पैलेस के पास मौजूद हैं, और यही वो अहमद पैलेस है जिसको लेकर पटना पुलिस ने तमाम दावे किए हैं। पटना पुलिस का दावा है कि इसी मकान में जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस के, उनका ये मकान बताया जा रहा है, और इस मकान में कई जो राजनीतिक संगठन हैं उनके नाम पर SDFI का नाम आया है, और इसी के नाम पर संगठन बनाकर मोहम्मद अतहर जो है वो सिमी का पूर्व सदस्य रहा है, उसने यहाँ पर देश विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की है, और उसका मकसद था कि 2047 तक बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। जो 2 समुदाय विशेष हैं उनके आपस में उनके विरुद्ध वैमनस्य पैदा करना है, देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना है, और इसी को लेकर मार्शल आर्ट की आड़ में न केवल केरल बल्कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ऐसे जो राज्य वहाँ के युवाओं को बुलाकर उनको मार्शल आर्ट की आड़ में ट्रेनिंग दी जा रही थी, और तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ थी, देश विरोधी गतिविधियाँ, उसमें इन्वॉल्व किया गया था। ये दावे पटना पुलिस ने किए हैं। हालांकि यहाँ के लोग इस दावे से इत्तेफाक नहीं रखते। इन लोगों का कहना है कि जो मोहम्मद जलालुद्दीन है, जो मकान मालिक हैं, उनकी साफ छवि रही है। हाँ, उन्होंने किराया जरूर मोहम्मद अतहर को दिया है, जिसके बारे में, जिसका इतिहास, जिसका बैकग्राउंड रहा है कि वह मोहम्मद सिमी का प्रतिबंधित संगठन जो है उससे रिलेटेड था, और कई जो आतंकी हैं उसको उन्होंने बेल करवाया था। और हालांकि यहाँ पर चूक भी हुई है। बिहार की एजेंसियों की बात कर लें तो मोहम्मद अतहर यहाँ पर बतौर किराएदार कई महीनों से रह रहा था। इसकी जानकारी बिहार की एजेंसियों को नहीं थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे ठीक उसके एक दिन पहले, 12 जुलाई के एक दिन पहले, 11 जुलाई को पटना पुलिस ने इस मकान में छापेमारी की और मोहम्मद अतहर और मकान मालिक को गिरफ्तार किया। इन दोनों को जेल भेज दिया गया है। आज 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे भी कई दौर में पूछताछ हुई है, कई क्लू मिले हैं, उसके आधार पर आगे छापेमारी चल रही है। और इस पूरे मामले में बिहार में स्पेशल ब्रांच हो, NIA हो, पटना पुलिस हो या फिर बिहार पुलिस की दूसरी एजेंसियां हो, लगातार कार्रवाई और छापेमारी कर रही है। क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इस पर नजरें लगातार टिकी हुई हैं, और देखना होगा इस पूरे मामले का किस कदर आगे खुलासा होता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जम्मू में परगवाल रोड पर आज सुबह एक मुश्तबा शय मिलने से लोगों में दहशत फैल गई थी। मकामी अफराद की इत्तला के बाद पुलिस और फौज की टीम जाए मौके पर पहुंची। बाद में मुश्तबा शय को नाकारा बना दिया गया। इस दौरान रोड पर ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासिर हुई।
वो हादसा हो सकता है क्योंकि आर्मी की गाड़ी यहाँ वहाँ से जाती है, सिविल गाड़ी है, सिविल जनता जाती है, तो हादसे बहुत हो सकते था। लेकिन आईडी मिलने के बाद, ब्लास्ट करने के बाद अभी राहत है। आईडी मिली है, अभी लोगों को थोड़ी राहत है। ये सुबह सर लगभग 6 बजे हमें भी पता चला, हम इधर मौके पे आए। उसके बाद हमने देखने के बाद हमने आर्मी वालों से कांटेक्ट किया, पुलिस स्टेशन में किया। साहब हैं रिटायर सूबेदार साहब, वो आए सुबह उठ के मेरे पास 6 बजे। मैं भी उठ रहा, मैं आने कैप्टन तक आया हूँ, तो वो बोलता साहब ऐसे ऐसे वहाँ एक सिलेंडर पड़ा है। मैंने भी खुद आके उसको देखा, एक तो उसमें पेन नहीं थी और दूसरे पीछे से ऐसे लग रहा है जैसे बेल्ट किया होता है। मैं सर इसमें डाउट है, आप ऐसे करते हैं कि आर्मी को कंफर्म करो कि पास है। उनका नंबर हमारे पास था, हमने आर्मी को कंफर्म किया, तकरीबन 1 घंटे में उनके आदमी आ गए। बहुत दहशत हो गई थी। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की है। पेट्रोल पर 5 रुपए जबकि डीजल पर 3 रुपए कमी की गई है। काबीना की मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तखफीफ करने के इशारे दिए गए थे। काबीना की मीटिंग में किसानों को भी कुछ राहत दी गई है। देशभरामध्ये, राज्यभरामध्ये पेट्रोल डिझेलवर दरांमध्ये वाढ होती आहे आणि म्हणून केंद्र सरकारने देखील 4 नोव्हेंबर 2021 व 22 मे 2022 रोजी पेट्रोल डिझेलच्या करामध्ये कपात केली होती। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी निर्णय घेऊन आणि त्यांनी राज्य शासनाला देखील तशा प्रकारचं आवाहन केलं होतं की आपला देखील जो काही कर आहे तो देखील आपण कमी केला तर सर्वसामान्य माणसाला मोठा दिलासा मिळू शकतो। परंतु काही राज्यांनी त्यांचं आवाहन आणि ज्या काही सूचना होत्या त्या मान्य करून राज्य सरकारचे दर कमी केले होते, परंतु आपल्या महाराष्ट्र शासनाने ते कमी केले नव्हते। आणि आम्ही या ठिकाणी युतीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर ठरवलंय की ज्या ज्या माध्यमातून आपली सगळी आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन आपण एक एक निर्णय जनतेच्या हिताचा घेतला पाहिजे। आणि म्हणून आज आम्ही पेट्रोल आणि डिझेलवर, पेट्रोलवर 5 रुपये आणि डिझेलवर 3 रुपये अशा प्रकारचे जे दर आहेत ते कमी करण्याचा निर्णय घेतलेला है। मुल्क में कोरोना का ग्राफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। ताज़ा आदादशुमार के मुताबिक एक दिन में 38 अफराद हलाक हुए। इस दौरान 16,482 मरीज शिफायाब हुए। एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर 1,36,000 से ज्यादा हो गई। यौमिया मुस्बित शरह 5.10 है। नाज़रीन, आपको महाराष्ट्र के अमरावती से एक बड़ी खबर दे दें। 2 मंजिला इमारत के मुनहदिम होने की खबर आ रही है। गांधी चौक पर वाक़ई इमारत आन की आन यानी पल के पल गिर पड़ी, मुनहदिम हो गई। महाराष्ट्र में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। तो अमरावती से ये बड़ी खबर, जहां एक 2 मंजिला इमारत पलक झपकते में मुनहदिम हो गई। गांधी चौक वो इलाका बताया जा रहा है जहां पर ये इमारत मुनहदिम हुई। तो इस वक्त की अहम खबर अमरावती से, जहां मूसलाधार बारिश के सबब गांधी चौक इलाके में वाक़ई एक इमारत मुनहदिम हो गई है। मजीद तफसीलात पर लगातार नजर बनी हुई है। 2 मंजिला इमारत ये बताई जा रही है। इस इमारत में क्या लोग मौजूद थे या फिर ये इमारत खाली थी, किस तरह की ये इमारत थी, इन तमाम तफसीलात पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। आपको बता दें, चूँकि महाराष्ट्र में लगातार कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, तो इस तरह के खदशे जो हैं वो जाहिर किए जा रहे थे। और अब अमरावती से ये खबर है जहां एक 2 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई है। मुंबई में हो रही बारिश से आवाम का बुरा हाल तो है ही, सड़कें और दीगर बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंच रहा है। सड़कों पर गड्ढे साफ देखे जा रहे हैं। बीजेपी ने महानगर पालिका
के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाजियों ने बीएमसी बदनवान के नारे लगाए। कोई नहीं आया।